We discussed the concept of basic concepts of acid base. See, Arrhenius concept is defined only in water. Arrhenius concept is defined only in water. Let me write some few points. Arrhenius acid and roasted lauric acid gives same result. But Arrhenius base and roasted lauric base do not mean the same thing. कैसे? Difference देखिए. If I take BOH, it will dissociate to give B plus and OH minus. This is for strong acid. If I talk about weak acid, then BOH will be in equilibrium with B plus and OH minus. This is Arrhenius base. But if you write B plus H2O and it is giving BH plus plus OH minus. This is Bronsted. Definitely weaker component we are talking about. This is what? Why strong acid? Strong base better. Strong base and weak base. And this is weak base. This is your rostered lauric base. Example. If I take NH3 plus water, it will give NH4 plus OH minus. This is Bronsted lauric base. Bronsted lauric base. But if I dissolve NH3 in water, it will become NH4OH. It will give NH4 plus and OH minus. Arrhenius base. But the results will what? Same.
ठीक है ना? Yes, sir. So if I give you concentration of ammonia or concentration of NH4OH, both are what? Same. Both will give same result. Again, what is NH3? Bronsted-Lowry base. What is ammonia? NH4OH? Arrhenius base. Try to understand the difference, because I'm teaching very slowly, teaching every aspect, whatever is required. It means if I take ammonia and water, it will become what? NH4OH. NH4OH. What is NH3? Bronsted-Lowry base. What is ammonia? Arrhenius base. This clarity should be in your mind. Therefore, what we can conclude, if Bronsted-Lowry base is dissolved in water, it becomes Arrhenius base. Any doubt in this? Sir, in this you told कि NH3 दिया और NH4OH दिया तो same thing होगा, but ऊपर लिखा है कि Arrhenius base does not mean, वो Arrhenius base and Bronsted-Lowry base does not mean the same thing. It does not mean the same thing, but result will be same. Meaning is not different. By definition they are not, but result दोनों को क्या मिल रहा है? Same ही मिल रहा है. Okay, sir. You can also make a simple sentence. Arrhenius acid and Bronsted-Lowry acid means the same thing and gives the same result. है ना? यहाँ पे लिख सकते हैं आप are same. ठीक है? उनका मीनिंग सेम नहीं है, पर रिजल्ट क्या है? सेम है. If I give you concentration of ammonia or concentration of NH4OH, both will be what? Same in problem solving. Very, very important. Clear है? Yes, sir. बहुत important है. एक ही चीज मैं कम से कम 4 बार बताऊंगा क्लास में, फिर भी उसको आप रिकॉल नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक. Now, if I take HA plus H2O, it will give H3O plus A minus. Definitely यहाँ पे आप aqueous लिखेंगे, aqueous लिखेंगे. यहाँ भी आप aqueous मेंशन करेंगे. aqueous नहीं है तो समझ लीजिए aqueous है वहाँ पे. तो अगर HA हमारा Bronsted-Lowry एसिड है, तो HA ने क्या किया? H प्लस दिया. H2O ने क्या किया? H प्लस एक्सेप्ट किया, है ना? तो Bronsted-Lowry एसिड हो गया, Bronsted-Lowry बेस हो गया. A माइनस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस. ये क्या होगा? Conjugate acid. किसका? H2O. H2O का. ठीक है. कॉन्जुगेट जो एसिड है, इट कैन आल्सो एक्ट एज अ Bronsted-Lowry एसिड. कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो किसकी तरह काम कर लेगा? Bronsted-Lowry बेस की तरह. सिंपल है. Yes. तो Bronsted-Lowry concept is always defined in water only. ये भी आप देखेंगे, or not always. Bronsted-Lowry base, RDS base also defined in water,
क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हमेशा वाटर ही दिखेंगे हर जगह पे. The sentence is not for Bronsted-Lowry. Arrhenius base and Arrhenius acid are always defined in terms of in solvent water. छोटी सी क्वेश्चन फिर से जो मैंने क्लास में कराया था. Write the conjugate base for the following. Phenol, ammonia, nitric acid, formic acid, acetic acid, ये छोटा सा होमवर्क रहेगा. Write the conjugate acid for the following. Aniline, ammonia, formic acid, ठीक है ना. यहाँ तक कोई डाउट बताइए. ठीक है. अब यहाँ से मेंशन करिए नोटबुक पे. सब लिख रहे हैं नोटबुक में आप लोग. सर ऊपर का थोड़ा लिखना बाकी. सर क्वेश्चन लिखना बाकी है. अच्छा लिख लो पहले. तो देखो पूरी अंडरस्टैंडिंग देखो. Arrhenius acid and Bronsted-Lowry acids are same. तो आप Ha plus H2O giving H3O plus and A minus लिखा. बेस के लिए हमने आपको दिखाया कि BOH या BOH and B are different thing because B will accept proton and BOH will give proton or OH minus. But the results, the problem solving wala part will be same whether they have given NH4OH or NH3 because I didn't put the constant. If there is a equilibrium sign, there is a constant also. We'll discuss and we'll name it also later. Completed? Hello, completed beta? The questions बाकी. हाँ. कुछ नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं. जैसे फिनॉल का क्या होगा. फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज फिनॉल. इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा. रिमूव 1H प्लस. ये क्या है. फिनॉल. एंड व्हाट इज दिस. फिनॉक्साइड. अगर ये एसिड है तो ये क्या हो गया. कॉन्जुगेट बेस. सबके साथ वही करनी है. सो रेडी एनिलीन ले लेते हैं. व्हाट इज एनिलीन. दिस. अगर ये आपका बेस है तो करनी कैसे पड़ेगी. You have to add 1H plus because N के पास what. Lone pair. Anilinium cation और आयन लिख सकते हैं. Done everyone?
हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स affecting degree of dissociation. Now dissociation से better word ionization होगा, because ions बनेंगे ना, तो ionization is a better word. Degree of ionization. Alpha of a weak electrolyte. So first आता है temperature. अब बताइए, सोच के बताइए, if you increase the temperature, what will happen to the alpha? It will increase. Why? Ionization is endothermic process. ठीक है, एंडोथर्मिक होगा तो आपको पता है कि T अगर बढ़ता है K will what? Increase. और एंडोथर्मिक तो अगर T बढ़ेंगे तो K इक्विलिब्रियम भी क्या होगा? K EQ मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. EQ बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे. प्रोडक्ट बढ़ेंगे मतलब क्या हो गया? रिएक्टेंट कम होंगे. रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे. If reactant will be consumed, then alpha will what? Increase. Because degree of dissociation is defined for what reactant? Other कोई doubt? No sir. Ionize करेंगे तो आप ions को अलग करेंगे ना. To oppositely charged ions को आप अलग करोगे तो you have to apply force. If you have to apply force, it will absorb some energy. Energy उसमें store हो जाएगी. So when you separate the oppositely charged ions, we have to supply energy, we have to do work on that, and the work done will be stored as a potential energy. तो उसको अलग करने के लिए मुझे energy supply करनी पड़ेगी. What is K equilibrium? Equilibrium constant. We are not writing Kc Kp because there are many K here. Similar to that, but concept will be same. Product upon reactant, nothing else. Next है आपका nature of solvent. Solvent having high value of dielectric constant and high solvation energy वाटर के लिए उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी का स्पेशल टर्म वाटर के लिए क्या होगा? Hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी. That is more polar solvent favors ionization. एग्जाम्पल क्या पोलर सॉल्वेंट का? वाटर. And third is concentration
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा कम होगी। उसी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। मतलब बेसिकली इसी को कनेक्ट करने की थर्ड, इफ टू कनेक्ट द थर्ड पॉइंट मैथमेटिकली, और कुछ नहीं है, बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम। सेंटेंस मेंशन कर लेते हैं। The degree of dissociation or ionization for weak electrolyte increases on dilution. Dilution means concentration क्या करेंगे? कम कर, concentration कम करेंगे, addition of water, addition of solvent. Dilution एक टेक्निकल टर्म होता है, उसको मैं समझाऊंगा शायद आपको, शायद बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, याद नहीं। देखिए, कंसीडर एन एक्वा सॉल्यूशन, एक जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, इट विल बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट बी ले लिया मैंने, of concentration C, ionization constant और equilibrium constant K। यहाँ पे जो concentration है वो क्या है? मोलारिटी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन क्या होगी? सेम। देखिएगा, BA aqueous solution लिया, weak electrolyte, the equilibrium sign will be this, constant will be K, it will split into what? B plus and A minus। तो देखना केमिकल इक्विलिब्रियम वाला मेथड यूज होगा। T इक्वल टू 0 ले लिया, ये कितनी है? C और 0 0। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? C माइनस एक्स, और क्या लिख सकते हैं? C माइनस C अल्फा, ये x होगा तो ये क्या हो सकता है? C अल्फा, ये भी x होगा तो ये क्या हो सकता है? C अल्फा। Now you can recall, because I already taught you regarding alpha, C अल्फा इक्वल टू वहां पे क्या है? x है, तो अल्फा इक्वल टू क्या है? x by C। What is x? Amount dissociated या consumed. And what is C? Initial value taken.
At equilibrium, simply K will be written as concentration of B plus concentration of A minus upon BA. क्या लिखेंगे आप? X into X upon C minus X और C alpha into C alpha upon C minus C alpha. ठीक है, तो व्हाट वी कैन जनरेट, एक इक्वेशन तो सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स. दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? अल्फा सी विल बी कैंसल, दिस सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. कोई खास टफ इक्वेशन नहीं जनरेट किया सुमित, सिंपल सा इक्वेशन है. तो चैप्टर सिंपल ही है, सिर्फ थोड़ी लेंथी है बस. ये दोनों में कोई अप्रोक्सीमेशन किया क्या मैंने? कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया. The results are without any approximation. ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. अब assumption ले रहे हैं, if alpha is much less than 1, that is अल्फा को हम लोग 0.1 से कम अगर ले लें, परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी लेस देन 10%. देन 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. Therefore k क्या बन जाएगा? C alpha square इक्वल टू क्या हो जाएगा? k by c. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर c बढ़ेगा तो अल्फा क्या होगी? कम होगी. एंड b plus equilibrium will be what? Equal to a minus equilibrium. It is nothing but c alpha, that is c into 2 under k by c, equal to c को आप जो the c which is outside the root, if you take it in the root, it will become c square and c will be cancelled. It will be root of kc. अब ये हमने अप्रोक्सीमेशन से लिखा, तो यहाँ पे जो k आया, k की वैल्यू आई k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर हो गया. This अप्रोक्सीमेशन किया यहाँ. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म डिफाइन कर रहे हैं. डिफाइन 1 by cs कैपिटल V रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मोलारिटी हो गई. तो V का नाम क्या क्या होगा? देखिए, V क्या है? इज रेसिप्रोकल ऑफ concentration. Concentration is what? Molarity. It is also known as
डाइल्यूशन, नाम ही डाइल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, सोच के बताइए। वन बाय सी की डेफिनेशन क्या होगी? थिंक, व्हाट इज सी? सी क्या है? सी मोलारिटी है। इफ सी इज मोलारिटी, तुम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी मोल्स present in 1 liter, so therefore 1 mole present in 1 by C One liters. by C. 1 by c liter. So what is the definition of 1 by c? It is the volume of solution. What is V? V is the volume of solution, बोलो, containing One. 1 mole of solute or electrolyte. In this case electrolyte, वो electrolyte ही में पढ़नी है सर, but generalize क्या होगा? Solute. Concentration is generalized for what? Solute. So what is dilution? Dilution is the volume of solution containing 1 mole of solute. Any doubt? No, sir. कोई दिक्कत नहीं. It means अल्फा का फॉर्मूला क्या था? K by C. Therefore we can write what? Kv. अब C अगर बढ़ता है या C कम कर लीजिए, तो ऐसा लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है तो अल्फा बढ़ेगी. तो अगर C कम होता है 1 by C बढ़ेगा. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम नहीं, डाइल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा. अल्फा भी क्या होगा? बढ़ेगा. इसी को हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, सिंपल फॉर्म में. If alpha is calculated using approximate formula, and is more than 0.1, मतलब approximate formula यूज करके आपने निकाला, इसी को approximate formula कहते हैं. approximate formula more than 1, more than 0.1, then use K equal to C alpha square upon 1 minus alpha to find alpha. क्या करनी पड़ेगी? That is, you have to solve quadratic in alpha. मतलब if see, I don't know about the approximation in alpha कि alpha छोटा होगा या बड़ा. I will be having K, I will be having C, ये मुझे पता होगा. तो we cannot decide whether alpha is smaller or larger. तो blindly will follow the approximate formula. If it is coming more less than 0.1, तो हमारा calculation बढ़िया. But if it is coming more than 0.1, then जो भी हमने किया हमने वो सही नहीं हुआ, तो you have to solve your
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इन ब्लाइंडली हमें फॉलो करनी है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, अगर वो नहीं सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग जाके ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? V को बढ़ाना। ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ऑन डाइल्यूशन मतलब पानी बढ़ा रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। अभी मान लीजिए 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में था, अभी आपने 2 लीटर पानी मिला दिया तो वॉल्यूम सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट? 3 लीटर। तो ऑन डाइल्यूशन मतलब V बढ़ा दिया हमने, मोल्स वही थे। ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। सब अच्छे से लिखा है क्या आपने? कहीं से मिस हुआ है कुछ? नहीं सर। देखिए अच्छे से, कहीं कुछ मिस हुआ तो आप नोट कर लीजिए। तो बिल्कुल एक सिंपल, मैं आपको आज बताऊंगा आज की क्लास की लर्निंग क्या है। हर क्लास में जो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी सी चीज होती है जो दिमाग में फिट रखनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ k? c alpha square upon 1 minus alpha without any approximation. When we do the approximation, it will become c alpha square. Alpha का फॉर्मूला रूट अंडर k by c. k is a constant. K will depend only on what? Temperature. k किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा सिर्फ। तो alpha equal to root under k by c. Even you can mark this also. क्वेश्चन सॉल्व करिए दोनों।
बोलिए। जब क्वेश्चन में दिया है कि यूज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, मतलब वो बता रहे हैं क्या कि अल्फा इज लेस देन 0.1? हाँ मतलब you have to use the formula alpha equal to root under KYC. ओके सर। मतलब ब्लाइंडली आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ स्पेशल टफ क्वेश्चंस में ही क्वाड्रेटिक आता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से ही। सर फर्स्ट का आंसर 0.8 लीटर्स है क्या? मिस्टेक बेटा, ओमकार ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, जब पूरा सही बन जाता है फिर भी गलती करते हैं। मतलब आपने सॉल्व बिल्कुल सही किया है, बट आंसर गलत सर निकाला। समझा सर। पर क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं होता? these are they are not, सर these are not 0.6 लीटर्स। but they are not solving, these are not conceptual error, no? They are solving errors. You have to beat this to get good marks. Correct.
Solve the questions. Shall I discuss? Cyril completed. Yes. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर आपका क्या है बताइए? 0.896 लीटर्स। नहीं, सर सेकंड क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना। हाँ सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला लगाना बस। अगेन ब्लाइंडली क्या लगानी है? अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। हाँ सर लिख लिया।
सर सेकंड के फर्स्ट का आंसर 0.0144 है क्या? एक मिनट देखना पड़ेगा। 0.0144। ठीक है, दैट इज लेस देन 0.1। हाँ यस सर। दैट इज गुड, वेल एंड गुड, जो हमने बनाया सही बनाया। सेकंड का चेक करना इस तरह से। सर आ गए सर तीनों। तीनों कैसे आ जाएगा? सेकंड थर्ड नहीं आया होगा इतना जल्दी तो। सेकंड का है 0.144। तो सही नहीं आया ना। सही आया क्या बताओ? नहीं सर। क्यों? What is it is? You cannot apply the approximate हाँ सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। 0.1. So our solving is wrong. So you have to solve what? Quadratic equation to get the value. ठीक है ना? हाँ सर।
क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, निकालना है इसमें. That must be added to 200 ml of 0.1 molar to double its degree of dissociation. So if you apply the formula, alpha का formula क्या है? K by C. From this we can write alpha is proportional to what? कैसा लिखें? Alpha 1 upon alpha 2 should be equal to C2 upon C1. या alpha 2 upon alpha 1, it will be C1 upon C2 का रूट अंडर, है ना? बताइए. हाँ सर. C1 अगर C है ऐसा, अल्फा 1 अगर अल्फा है तो अल्फा 2 क्या हो गया? 2 अल्फा. Therefore 2 alpha upon alpha should be equal to C1 upon C2. Will be what? 4. So C2 is what? C1 upon 4. अगर C2 4 times कम हो गया तो वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी? C को आप चेंज कर दिए C से C by 4 में, तो वॉल्यूम को चेंज क्या करनी पड़ेगी? 4 times, because C and volume are what? Inversely related. Yes. हेलो, कोई डाउट नहीं है. तो हमारा वॉल्यूम क्या था? 200 ml. कितनी करनी पड़ेगी? 800. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड? सिंपल. ठीक है ना? सेकंड वाले का ब्लाइंडली में क्या अप्लाई करनी है? अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला अप्लाई करनी है. तो अल्फा फॉर्मूला इज व्हाट? रूट अंडर k by c. तो k इज व्हाट? 2 into 10 power minus 5 upon 0.1. if you simplify it, it is 0.014 आएगा, which is less than 0.1. So that's why our value is what? Correct. Second one, if you simplify the same, if I use this 10 power minus 3 upon 2 into 10 power minus 5, यहाँ पे 2 into 10 power minus 5 लिखा upon 10 power minus 3 कर दिया, तो वैल्यू क्या आ रही है? 0.144. 1414 ना, which is more than what? 0.1. Therefore our calculation is wrong. तो हमें क्या करनी पड़ेगी? सॉल्व क्वाड्रेटिक. सॉल्व करिए मत, सॉल्व कर लेंगे ऑब्वियसली. तो k इक्वल टू क्या था? c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो 2 into 10 power minus 5, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ खास नहीं. 10 power minus 3 into अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर अपॉन 2. उसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. सिमिलरली फॉर थर्ड वन आल्सो,
थर्ड भी क्या आएगा, यू हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, क्योंकि थर्ड में कुछ गलत आ जाएगा। देखना, अगर मैं यूज करूंगा दिस 2 into 10 power minus 5 upon 10 power minus 5, सर 1.44 आता है थर्ड का। 414 आएगा। हाँ तो सर। 1.414 तो अल्फा 1 से ज्यादा हो गया ना, हाँ सर। बट अल्फा कांट बी मोर देन 1, तो वैसे ही गलत हो गया। अल्फा तो पॉइंट अल्फा 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना। अल्फा का रेंज क्या होता है, 0 to 1। अल्फा कांट बी मोर देन 1, तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया। अगेन सॉल्व क्वाड्रेटिक। सर हम लोग अल्फा को लेस देन 0.1 क्यों रखते हैं? अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ है इस चैप्टर में, ओनली अप्रोक्सीमेशन इज देयर। वो एक ले लिया गया है कि इससे कम रहा तो कहीं कहीं 0.06 भी मिलेगा, पर बट फॉर सिंपलिसिटी आई एम टेकिंग दिस। आई विल टेल यू मोर डिटेल डिस्कशन फॉर दिस, बट मोर और लेस इसी से काम चल जाता है, जेई एडवांस तक काम चल जाता है। जो एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन होती है कुछ और होती है, बट इसी से हमारा काम चल जाता है, तो व्हाई शुड आई स्पेंड अवर टाइम। समझ गए? डन? हाँ सर। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? यस नो, सर। अगर मैं आपसे पूछ लेता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CS3, अच्छा CS3CO माइनस अगर डिसोसिएट करेंगे तो क्या क्या फॉर्म करेंगे? CH3COO minus plus H plus। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CS3CO माइनस क्या होगा? C alpha, that is also equal to what? H plus। Always, this is always valid। होगा ना, बताइए। लेकिन रूट अंडर के अल्फा के रूट अंडर के सी, चेक करिए यहाँ पे, यू रिटर्न दिस आल्सो ना, रूट अंडर के सी, दिस इज अप्रोक्सीमेट। दिस फर्स्ट जो पार्ट है, इट इज ऑलवेज वैलिड। सेकंड पार्ट इज ओनली वैलिड व्हेन व्हाट? अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीएच स्केल। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू गिव H+, तो जितना ज्यादा H+, उतनी ज्यादा एसिडिक। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, अदरवाइज एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ और भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देयर आर 3 डेफिनेशंस वी हैव। बट इफ आई टॉक अबाउट द वाटर, जिस एसिड की टेंडेंसी मोर टू गिव H+ और H3O+ इन वाटर होगा, दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। The base having more tendency to give OH- in water, that will be more basic. Can also base to give OH- or to accept H+ in water. बहुत बेसिक सा डेफिनेशन।
concentration of H plus is written in a simplified form, ये आप जानते हैं, given by Sorensen, known as pH scale. pH means power of hydrogen or potential of hydrogen. pH is negative of log of activity of H plus. अब ये हाई फाई लग रहा होगा, तो pH माइनस log of A H plus. अब देखिए ऊपर जो मैंने समझाया है, P क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा हमने स्मॉल p है बेसिकली. तो p इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, माइनस लॉग. तो px मतलब माइनस लॉग ऑफ समथिंग, pk माइनस लॉग ऑफ समथिंग, pka माइनस लॉग ऑफ k, pkb माइनस लॉग ऑफ kb. माइनस लॉग ऑफ kh. बोलोगे सर ये सब एक ही जैसा तो लिख रहे हो आप, लिख रहे हैं, बट यही सब यूज होते हैं आयनिक में. pkw माइनस लॉग ऑफ समथिंग दैट इज kw. pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस नहीं होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस. अदरवाइज ऊपर जो वैल्यू था वही पुट कर. अगर मैं बोलूंगा माइनस, अगर मैं कहूं कि H प्लस की वैल्यू 10⁻² है, तो pH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻², दैट इज व्हाट, 2. कोई डाउट बताइए. तो P का फंडा समझ में आ गया. P किसे में भी लगा दीजिए, इट मीन्स व्हाट, माइनस लॉग. PKIN. अब Ka का मतलब क्या है, A मीन्स व्हाट, एसिड. तो Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb इज व्हाट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, KIN इंडिकेटर डिसोसिएशन कांस्टेंट. सब एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत सारे वैरायटी के आपको मिलेंगे आयनिक में. ठीक है. P का मतलब वही होता है. तो pH means power of hydrogen. pH is negative of log of activity of H plus. pH equal to minus log of AH plus. वही एक्टिविटी है, और एक्टिविटी को लिखते हैं A into concentration or molarity of H plus है. For dilute solution, हमें dilute solution ही पढ़नी होती है. For dilute solution, A is approximately same as 1. तो AH plus will be equal to, क्या हो गया ये, molarity of H plus. तो pH क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बिकॉज A तो 1 हो गया. तो हमें यही पढ़नी होती है. pH was mainly introduced to compare, होता है AH plus, पर हमारे केस में क्या पढ़नी है, डायल्यूट सॉल्यूशन, तो वो लिखेंगे. तो pH was mainly introduced to compare acidic or basic strength of solution in solution having lower concentration. अब सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है. फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन pH इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ 10, बेस 10 ले लेंगे या सिंपली ऐसा लिखते हैं. क्लियर यहाँ तक? यस सर. इतनी आप कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है ना, इतनी कंप्लीट कर लेना. इसके आगे नहीं जाते हैं कि दूसरी क्लास होगी ना 8:35 से. हाँ सर. ओके, ठीक है. विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. जितना पढ़ा दिया गया, देखो आयनिक इज अ लेंथी चैप्टर, तो हमेशा प्लीज क्लास के पहले एक एक चीज पढ़ के आइए. और बोलिए सर हमें सब आता है, जितना आपने पढ़ाया सब आता है. एनी टाइम, एनी डे इफ आई आस्क यू, ये मत सोचना एक चैप्टर के बाद खत्म हो जाएगा तो रिवाइज करेंगे. नो, नेवर. तो चैप्टर नहीं आएगी आपको, इम्पॉसिबल है. जिस दिन तक जहां तक पढ़ाई गई है वहां तक आप अच्छे से रिवाइज करके, याद करके सब कुछ डन करिए. क्वेश्चन सॉल्विंग सब के साथ, रिजल्ट्स, फॉर्मूले, सब कुछ सब आते हैं हर दिन. तो ही आपको ये चैप्टर इतना आसान लगेगा कि अरे एक ही चीज तो कर रहे हैं सर. ठीक है, चलिए, थैंक्स बेटा. थैंक यू सर. बाय. बाय.